تو بیاکھ گلال چھتنس تُہۍ ؤنِو پنُن ناو؟ ذیشان پرویز. ذیشان پرویز کٔژمہِ جمٲژ چھُ پران؟ دویمہِ جمٲژ. ذیشانن کیٛاہ چھُ اوٚنمُت یاد کٔرِتھ آز؟ لُکھ بٲتھ. ؤنِو. نانہِ دِتُم دَب. کو ہدایت دی ہے کہ وہ فی الحال نیشنل کانفرنس سرکار کو بھرپور تعاون دے اور انہیں کام کرنے کا موقع دیں. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں میں پارٹی ورکروں کو کہا کہ بہت جلد دربار منہ کا رواج بحال کیا جائے گا. انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار اپنے تمام وعدے پورا کرے گی جو عوام کے ساتھ کیے گئے ہیں. اس دوران آج وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سربراہی میں دوسری کابینہ میٹنگ سری نگر میں منعقد ہوئی جس میں چند اہم فیصلے لیے گئے. اطلاعات کے مطابق 4 نومبر سے شروع ہونے والے اسمبلی سیشن میں لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب کو منظوری دی گئی اور اس کے ساتھ ہی تعلیمی کیلنڈر میں بھی تبدیلی کی گئی. اب 9ویں جماعت تک سالانہ امتحانات اس سال دسمبر تک ہی لیے جائیں گے. وزیر تعلیم سکینہ اتو نے آج شام شہربین سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہائر سیکنڈری اسکولوں میں 576 لیکچرروں کی اسامیاں پر کرنے کے لیے پبلک سروس کمیشن سے رجوع کیا ہے. انہوں نے کہا کہ فی الحال رہبر تعلیم طرز کی بھرتی بحال کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں. البتہ آج کابینہ نے باضابطہ طور اکتوبر-نومبر تعلیمی کیلنڈر کو بحال کرنے کو منظوری دی ہے اور بورڈ کے تمام امتحانات فروری کے آخر تک شروع کیے جائیں گے جبکہ 9ویں جماعت تک کے امتحانات دسمبر تک ہی اس سال لیے جائیں گے. جی ہمیں بہت اس میں ڈیمانڈ تھی, چاہے وہ پیرنٹس ہو چاہے وہ بچے ہوں. بچوں نے ہمیں ہر جگہ جہاں جہاں میں گئی بچوں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں جو پہلے نومبر دسمبر میں ہمارا سیشن ہوتا ہے وہ اسی طرح ہو جانا چاہیے. تو پھر ہم نے اس کو ایگزامن کیا تو آج ہم کیبنٹ میں لے کے گئے تھے اور چیف منسٹر صاحب کا اس پہ تھا کیونکہ ان کو بھی کافی ڈیمانڈ آتی تھی پیرنٹس کی طرف سے بچوں کی طرف سے کہ ہونا چاہیے اکیڈمک سیشن پھر سے نومبر دسمبر ہونا چاہیے. تو آج کیبنٹ میں لے کے چیف منسٹر صاحب نے یہ اپروو کیا ہے پوری کیبنٹ نے. تو اب جو ایگزامز ہوں گے ابھی اس سال وہ نومبر دسمبر میں ہی ہوں گے اپ ٹو 9th. پھر اس میں بچتے ہیں 3 کلاسز 10th 11th 12th. ان کا بورڈ میں ایگزام ہے کیونکہ وہ بورڈ ایگزام ہے ان 3 کلاسز کے. اب جو ہے ان کا ایگزام جو ہے وہ ہم کریں گے اینڈنگ فیب سے سٹارٹ اور جلدی مڈ مارچ تک وہ ایگزام ان کا ختم ہونا چاہیے کیونکہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ بھی اسی جو ونٹر زون کا آج ہم نے اکیڈمک سیشن چینج کیا ہے پھر یہ یونیفارم ہو جائے گا. ابھی تک فی الحال یہ 9 تک ہو گیا ہے. جس طرح سے آپ گریز گئی کچھ دیگر علاقوں میں گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سکولوں میں اساتذہ کی بہت کمی ہے, شارٹیج ہے, تو اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے آپ نے؟ بہت شارٹیج ہے, چاہے وہ ٹیچرز کی بات ہو لیکچررز کی بات ہو, پرنسپلز کی پوسٹ ہمارے پاس بہت خالی ہیں, گاڑیوز ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن میں نے یہ ایگزامن کیا ہوا ہے بہت جلد جو ہے ہمارے پاس یہ جو پوسٹ ہیں کچھ پوسٹ ہمیں پروموٹ کرنے ہیں. مان لیجیے جو پرنسپلز ہیں گاڑیوں پروموٹ کرنا ہے وہ ہے ڈیو, ان کی پروموشن ہے وہ رکی ہوئی تھی لیکن میں اس کو ایگزامن کر رہی ہوں اور بہت جلد جو ہے لگ بھگ 10-15-20 دن تک یہ مسئلہ جو ہے اس کو ہم حل کریں گے. جو ویکنسیز ہمارے پاس ہے ان ویکنسیز کو فل کریں گے اور چاہے وہ زاڑیو ہو چاہے وہ پرنسپل ہو چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ ماسٹر ہو, ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ سٹاف نہیں دو گے, جب آپ ہیڈ نہیں دو گے انسٹیٹیوشن کا, جب آپ پڑھانے والے ماسٹر نہیں دو گے ٹیچر نہیں دو گے تو پھر کیا آپ ایکسپیکٹ کرو گے کہ آپ کا جو رزلٹ ہے وہ صحیح آئے گا یا بچے جو ہے وہ آگے بڑھ پائیں گے, وہ تعلیم جو ہے صحیح سے صحیح حاصل کریں گے. کیونکہ ہمارے اسکولز میں بہت انٹیلیجنٹ ٹیچر ہے, قابل ہیں, لیکن کمیاں بہت ہیں. وہ کمیاں ہم دیکھ رہے ہیں, ایگزامن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے جو ہے یہ کمیاں جو ہیں ان کو ہم پوری کریں گے اور جو بھی پاسبلٹی ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہماری اس سرکار کی کمٹمنٹ ہے کہ یہ لوگوں کی سرکار ہونی چاہیے, اس میں لوگوں کی آواز ہونی چاہیے اور لوگوں کے جو مشکلات ہیں جو ان کو 10 برسوں کے بیچ میں آئے وہ مشکلات جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ان مشکلات کو حل کرنے کی, چاہے وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہو, ہیلتھ ہو, چاہے سوشل ویلفیئر ہو یا باقی جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. آنریبل چیف منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے ان سے مرہم کر سکے. ہماری کمٹمنٹ یہی ہے اور ہم اس کمٹمنٹ کو انشاءاللہ پورا کریں گے. ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ بھی کرنے جا رہے ہیں؟ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے, وہ تو سروس سلیکشن بورڈ ہی کرتے ہیں, چاہے وہ ایس ایس بی ہو چاہے وہ
ये PSC पब्लिक सर्विस कमीशन हो। कुछ पोस्ट लेक्चरर्स की कल हमने की है रेफर, और हम कोशिश करेंगे, जैसे कल हमने 576 पोस्ट रेफर किए हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब हम कोशिश करेंगे कि ये टाइम लिमिट जो है उसका हो जाए, जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए, ताकि एक हमें फ़ायदा मिल सके कि हमारी जो वैकेंसीज हैं वो पूरी हो, दूसरा बच्चों की जो तालीम है वो से मुतासिर ना हो, उनको भी फ़ायदा मिल सके। और जो बाकी वैकेंसीज हमारे पास हैं उनको भी, चाहे वो प्रमोशन के ज़रिए फिल करने की बात हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट बोर्ड जो सिलेक्शन बोर्ड है उनको रेफर करने की बात हो, हम ये कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके इस चीज को हम जल्दी से जल्द करें। तो ये भी खबरें आ रही हैं कि RET स्कीम जो है उसे दोबारा आप बहाल करने जा रही हैं। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है कोई प्रपोजल कि RET स्कीम को दोबारा किया जाएगा, क्योंकि ये एक मखसूस चीज के लिए उस टाइम फारूक अब्दुल्ला साहब जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम हमारे काफी स्कूल्स, आपको भी पता होगा क्योंकि दूर दराज इलाके में आप भी रहते हैं, कि वो बंद पड़े थे स्कूल, हमारे पास टीचर नहीं था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि वो कम्पीट नहीं कर पाते थे मेरिट में, और हमने सोचा कि एक जो बेरोजगारी है वहाँ पे एक उन नौजवान बच्चे और बच्चियों को रोजगार मिलेगा, और जो स्कूल बंद थे, जो तालीम से महरूम हो रहे थे बच्चे, उनको भी तालीम मिल सके। और उसमें बहुत इस RET टीचर ने भी, उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने भी अपने लेवल पे इन स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, तालीम दी, और हमारे लिए फ़ायदा ये हुआ कि सारे जो स्कूल बंद पड़े थे वो खुल गए। तो अभी इस तरह की डिमांड नहीं है कि स्कूल बंद है उनको खोलने के लिए RET स्कीम को फिर से देखना पड़ेगा, लेकिन आगे देखेंगे, आगे जो भी ज़रूरत होगा, जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। 10वीं से 12वीं जमात तक के इम्तिहानात फरवरी से मार्च के दरमियान लिए जाएंगे। 9वीं तक के सालाना इम्तिहानात इस साल दिसंबर तक ही मुकम्मल होंगे। वजीर तालीम सकीना इत्तू का ऐलान। इस दौरान जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कोयमानी, जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के सदर मोहम्मद शफी राथर और जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने तालीमी सेशन में तब्दीली लाने के जम्मू कश्मीर हुकूमत के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे दानिशमंदाना कदम करार दिया है और कहा है कि इससे तलबा और तालिबात को फायदा होगा। अब्दुल कोयमानी ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला और वजीर तालीम सकीना इत्तू के इस कदम की सराहना की है। शेरबीन आप श्रीनगर से सुन रहे हैं। सामिन, कल जम्मू कश्मीर UT का फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर की जानिब से कल SKICC श्रीनगर में एक तकरीब मुनक्कद होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहेंगे। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जडीबल निशस्त के रुकने असेंबली तनवीर सादिक का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कल मुनक्कद होने वाली UT फाउंडेशन डे की तकरीब में शिरकत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस दिन को नहीं मानती है। तनवीर सादिक ने कहा कि कल जो UT फाउंडेशन डे पर तकरीब मुनक्कद हो रही है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी फर्द शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि हम इसे तस्लीम नहीं करते हैं। अब एक और मौजू। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करानी आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में DCC के सदूर और दीगर सीनियर लीडरान की एक मीटिंग की सदारत की और मुख्तलिफ अजला में तंजीमी उमूर और दीगर सरगर्मियों के बारे में बातचीत की। MLA बांडीपुरा निजामुद्दीन भट्ट भी मीटिंग में मौजूद थे। तारिक हमीद करानी ने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदूर पर जोर दिया है कि वो अपने मुतल्लिका अजला में पार्टी के हर प्राइमरी मेंबर की शमूलियत के साथ साथ आइंदा अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दें और तमाम मुतल्लिका लीडरों और कारकुनों के साथ ब्लॉक सतह पर पार्टी सरगर्मियों के हवाले से जिम्मेदारियां बांटें। PDP के सीनियर लीडर और MLA पुलवामा वहीदुर रहमान पारा ने जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी को गैर मुनसिफाना करार देते हुए इसको खत्म करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मुलाजमतों तक महदूद नहीं है, बल्कि तमाम इदारों में तवील मुद्दी मयार और अहलियत के साथ समझौता करना है। MLA ने इन बातों का इजहार आज X पर अपने एक पोस्ट में किया है। वो जम्मू कश्मीर मुश्तरका मुसाबकती इम्तिहान 2023 के लिए तलब किए गए उम्मीदवारों पर तबसरा कर रहे थे। एक फहरिस्त के मुताबिक मेडिकल इम्तिहान के लिए बुलाए गए 71 उम्मीदवारों में से 42 का ताल्लुक मखसूस ज़ुमरों से है। वहीद पारा ने अपने पोस्ट में कहा है कि 70% से ज्यादा आबादी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन 2023 के नताज में सिर्फ 40% उम्मीदवार ओपन मेरिट के तहत कामयाब करार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मेरिट के खिलाफ इस गैर मुनसिफाना पॉलिसी को खत्म करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि रिजर्वेशन आबादी के हकीकी तनासुब की अक्कासी हो। सभी सरहदी इलाका गुरेज से मिली इतलात के मुताबिक गुज़श्ता देर शाम तुलेल के गुजरा गाँव में साबिक डिप्टी स्पीकर और MLA गुरेज नजीर अहमद गुरेजी के
एक काफिले पर हमला किया गया जिस दौरान 4 अफराद जख्मी हुए, जबकि कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की इत्तलात है। इत्तलात के मुताबिक एमएलए गुरेज गुज़श्ता रोज तुलेल के आखिरी गांव चकवाली गए थे और वापसी पर गुजरा गांव में उन पर हमला किया गया। बताया जाता है कि हमला उनके हरीफ और बीजेपी लीडर के हामियों ने किया है। गुरेज से मिली इत्तलात के मुताबिक एमएलए मौसूफ नजीर अहमद गुरेजी जब शाम को चकवाली गांव से वापस आ रहे थे कि गुजरा गांव में उनके कारवां पर संगबारी की गई और कुल्हाड़ियों से हमला किया गया। इस हमले में अगरचे एमएलए मौसूफ बगैर किसी नुकसान के बच गए, मगर उनके 4 साथी जख्मी हुए, जिनमें से 2 को शदीद चोटें आने के बाद सिक्किम सोरा मुंतकिल किया गया। इत्तलात है कि हमला पुलिस की मौजूदगी में हुआ और इसमें 6 के करीब गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है। ताहम बीजेपी लीडरान ने इन खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि एमएलए मौसूफ के हामियों ने ही उन पर हमला किया। एसएसपी बांडीपोरा ने एमएलए पर हुए हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरियासना एमएलए गुरेज नजीर अहमद गुरेजी ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि उनके सियासी हरीफ के रिश्तेदारों ने उन पर पथराव किया और तेज धार हथियारों से हमला करने की कोशिश की। उन्हें बताया कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ। एमएलए मौसूफ ने कहा कि अगर एसएचओ और उनका अमला साथ नहीं होता तो उनके लिए जान बचाना मुश्किल था। मैं हस्ब मामूल जब इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद 7-8 दिन के बाद मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आया और पिछले 10-12 दिनों से मैं कॉन्स्टिट्यूंसी घूम रहा हूँ। हर गांव में जाता हूँ, वहाँ की प्रॉब्लम्स को सुनता हूँ, लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज मैं लास्ट गांव जो है वो गुजरान और अब्दुल्लन है, चकवाली। तो जो ही हमारी गाड़ी बुढ़वा में शुक्रिया अदा करने के बाद विलेज को और फिर गुजरान गई जहाँ मेरा अपोनेंट रहता है, तो वहाँ शुक्रिया अदा किया। उसके बाद एसएचओ हमारे साथ था दिलेल का और इंचार्ज सेकंड अफसर जो है हमारा गुरेज का मेरे साथ था, पुलिस की गाड़ियाँ थी। मेरी असम्बली पर जानलेवा हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने हमले की तहकीकात की मांग की है और साथ ही मुलव्वस अफराद को फौरी तौर गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके, वो भी बनाओ, दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी यात्रा की साथी भारतीय रेल। मैं हूं एक सफर, एक कहानी, एक अनुभव। आपकी छोटी छोटी कोशिशें इस सफर को खुशनुमा बना सकती हैं। कचरा डस्टबिन में डालें, रेल परिसर, पटरियों, प्लेटफॉर्म्स और डब्बों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। आओ स्वच्छता को मिलकर सफल बनाएं। एक स्वच्छ भारत की ओर हम सब एक कदम बढ़ाएं। उत्तर रेलवे द्वारा जनहित में जारी। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। समी जम्मू कश्मीर में GPF ज़वाबित में किए गए बदलाव और ट्रेजरी में रुकूमत की वागुजारी में हो रही ताखीर से मुलाजमीन को सख्त मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह कि जम्मू कश्मीर सरकार ने GPF निकालने में वज़ा ज़वाबित में तब्दीली कर रखी है, जिससे मुलाजमीन मन मुताबिक रुकूमत नहीं निकाल सकते। साथ ही वक्त पर रुकूमत दस्तयाब न कराने के बायस मुलाजमीन को ट्रेजरियों से वक्त पर हुकूमत वागुजार नहीं हो रही है और उन्हें इस सिलसिले में हफ्तों ही नहीं बल्कि बाज़ औक़ात महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, जबकि वक्त पर हुकूमत न मिलने से मुतल्लिका मुलाजमीन को तरह तरह के मसाइल का सामना रहता है। फिर चाहे बच्चों की तालीम हो, शादी ब्याह हो या फिर घर की तामीर, कोई काम वक्त पर नहीं हो पाता। इस हवाले से कल भी हमने शेरबीन में एक खबर नश्र की थी, जिसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में बांडीपोरा के बाज GPF मामलात में ताखीर का तज़किरा भी था। इस मामले पर शेरबीन को चीफ अकाउंटेंस ऑफिसर की तरफ से बताया गया है कि उनके दफ्तर में कोई भी GPF केस इल्तिवा में नहीं है और वो इन मामलात को तरजीही बुनियाद पर जाती तौर देखती हैं। बांडीपोरा के जो GPF केस उनके दफ्तर को मौसूल हुए थे वो तकरीबन 10 रोज कबल मंजूर करके मुतल्लिका CO के दफ्तर भेज दिए गए हैं, जहां से उन्हें मुतल्लिका जोनों या फिर स्कूलों को भेजा जाना मकसूद है। अगर वहां से कोई देरी हुई हो तो इसकी जिम्मेदारी डायरेक्टरेट ऑफिस पर नहीं लगाई जा सकती है। समीन महकमा देही तरक्की ने लगभग 50 वीडियोज के खिलाफ कार्रवाई करने का अमल शुरू किया। इतलात के मुताबिक इन वीडियोज के बारे में इतलात है कि उन्होंने मनरेगा स्कीम अमलाने में
कोताही बरती है। अब एक और मौजूद। सभी जम्मू कश्मीर में अलग अलग सड़क हादसात में 5 अफराद जाँ बहक जबकि कम से कम 4 जख्मी हुए हैं। रामबन में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मगरकोट के नजदीक एक कार हादसे का शिकार हुई जिसके नतीजे में 2 अफराद की मौत जबकि 4 दीगर जख्मी हुए। बताया जाता है कि कार श्रीनगर की तरफ जा रही थी और इसमें तमाम सवारियों का ताल्लुक महाराष्ट्र से था जबकि जहां बाग होने वालों में गाड़ी का ड्राइवर और एक खातून शामिल है। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए सब्जिल अस्पताल बानिहाल मुंतकिल किया गया। इधर रियासी के गुलाबपुरा इलाके में एक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हुई है। जराये ने बताया कि जिला रियासी के गुलाबपुर इलाके में एक डंपर आज सवेरे ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरा और इसके नतीजे में 2 अफराद की मौत हुई है। इधर बांडीपुरा के हाजिन इलाके में गुज़श्ता देर शाम एक उम्र रसीदा शख्स ट्रैक्टर की सदमे आकर शदीद तो जख्मी हुआ। अगरचे जख्मी शख्स को इलाज के लिए फौरी तौर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया मगर डॉक्टर ने उसे मुर्दा करार दिया। महलूक की शिनाख्त मोहम्मद अब्दुल्ला शेख वलद गुलाम कादिर शेख साकिन मारकुंड हाजिन के तौर हुई है। इस दौरान दमाल हाजीपुरा इलाके में एक और सड़क हादसा पेश आया है। गुज़श्ता शाम नागम डी के मर्ग कुलगाम के नजदीक ये हादसा पेश आया। एक मोटरसाइकिल सवार की इसमें मौत हुई है जबकि 2 जख्मी हुए। जाँ बहक हुए नौजवान की शिनाख्त समीर अहमद राथर वलद मुबारक अहमद राथर के तौर हुई है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 2 रोज के अंदर 10 से ज्यादा अफराद की मौत सड़क हादसात में हुई है जबकि 50 के करीब जख्मी हुए हैं। शहरबीन आप श्रीनगर से मोहम्मद हुसैन जफर के साथ सुन रहे हैं। सामीन आज अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात अक़ीदत एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में आस्तान आलिया चार शरीफ में दिन भर दुरूद व अज़कार की रूह परवर मजालिस का एहतमाम रहा और हजारों अक़ीदतमंदों ने वहां हाजिरी दी और इस मौके पर उलमा इकराम ने हजरत अलमदार कश्मीर की सीरत और तालीमात पर रोशनी डाली। इधर इतलात के मुताबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला, उनके सलाहकार नासिर असलमानी, काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने आज चार शरीफ जाकर वहां हाजिरी दी और खैर बरकत की मजालिस में शामिल हुए। मुकम्मल रिपोर्ट यूनिस पारी से। हजरत शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह जिन्हें अलमदारी कश्मीर और नुंद्रिश के नाम से भी जाना जाता है, 600 साल कबल कुरान और हदीस की तालीमात को अपनी मादरी कश्मीरी जबान में पेश करके हमें दीन इस्लाम की अजमत से फैज़याब किया, जबकि वादी के कोने कोने से आए हुए हजारों अकीदतमंदों ने आज उनके आस्तान आलिया पर हाजिरी दी और रूह परवर मजालिस में शिरकत करते हुए 605वां सालाना उर्स निहायती शान शौकत और मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में मसाजिद, जियारतगाहों और खानकाहों में शब खानी, दुरूद व अज़कार, कलामी शेखुल आलम और खत्मातुल मौज़मात की रूह परवर मजालिस मुनक़िद की गई। आज की सबसे बड़ी तकरीब वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के चार शरीफ में मुनक़िद हुई। अलमदारी कश्मीर के नाम से मंसूब खानकाई मौला में अकीदतमंदों ने शेखुल आलम की दरगाह में नमाज ज़ोहर अदा की और दुरूद व अज़कार और खुसूसी दुआओं के महफिलों में हिस्सा लिया, जिनमें मर्दों के साथ साथ औरतों की भी एक अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। इस दौरान आज ज़ियारत आलिया पर दिन भर दुरूद व अज़कार और खत्मातुल मौज़मात की मजालिस मुनक़िद हुई, जिनमें हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की और खैर बरकत में फैज़याब हुए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वज़मुज़ामिल मुदस्सिर साये आसियानी दाचोनुई सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वाजह है गुज़श्ता रोज ही ज़ायरीन जोश खरोश के साथ आस्तानी आलिया की आते में दाखिल हो रहे थे और अपनी हाजात की तकमील की दुआएं मांग रहे थे। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रात से ही आस्तानी आलिया सारे शरीफ में ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद ने शब खानी की, जिस दौरान अमन व सलामती के लिए खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया, जबकि हर नमाज के बाद अकीदतमंद तबरुकात की दीदार से फैज़याब हुए। इस मौके पर हजारों लोगों से खिताब के दौरान उलमा ने वली कामिल की तालीमात और उनके कलाम पर मुफस्सल रोशनी डाली और लोगों को शेखुल आलम की तालीमात और तर्ज हयात को अपनाने पर जोर दिया। इसी दौरान आज लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल के अलावा व दीगर कई मेंबरान असेंबली ने भी दरगाह पर हाजिरी दी और इंतजामात का जायजा लिया। वही जिला इंतजामिया और वक्फ बोर्ड ने ज़ायरीन के लिए बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट और दीगर सहूलियात दस्तयाब रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। यही बात काबिल जिक्र है कि लोगों को इस ज़ियारत के साथ बहुत ही ज्यादा अकीदत है और मुस्लिम लोगों के अलावा यहाँ पर हर मजहब के लोग, जिनमें कश्मीरी पंडित भी शामिल है, साल भर हाजिरी देने आते हैं।
जबकि उर्स के सिलसिले में पूरा दिन सरारी शरीफ कस्बे में गैर मामूली गहमा गहमी देखने को मिली। यहाँ ये बताता चलूं कि गुज़श्ता कई बरसों से यह रवायत चली आ रही है कि खवातीन मुसलसल एक माह तक दरमियानी शब को जियारत शरीफ पर हाजिरी देने के दौरान कलामी शेखुल आलम का वनवन की सूरत में पढ़ते हैं और कलामी शेखुल आलम के साथ साथ खवातीन दुरूद व अज़कार और नात खानी की रूह परवर मजालिस आरास्ता करती है और ये रवायत साल से चली आ रही है। ये थे बड़गाम से यूनुस परे। समय आकाशवाणी श्रीनगर में हमारे साथी और कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के सरबरा एनपी सिंह की वालिदा प्रीतम कौर साकिना मिंटो सर्कल आलोचीबाग श्रीनगर मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल कर गई हैं। आजानी की आखिरी रसूमात करण नगर श्रीनगर के शमशान घाट में आज दोपहर 3:30 बजे अंजाम दी गई। आखिरी रसूमात में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाली नामवर शख्सियात ने शमूलियत की, जबकि आकाशवाणी श्रीनगर के मुलाजमीन का एक वक्त भी इस मौके पर मौजूद था। वाज़ेह की प्रीतम कौर के शौहर आजानी हरबान सिंह भी ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के मुलाजिम रहे हैं, जबकि उनका आबाई गांव चक शतलूरा बारामूला है। आज आजानी की वफात पर ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर, दूरदर्शन श्रीनगर के अमले और पंजाबी साहित्य सभा ने सदमे का इजहार करते हुए सोगवारान खासतौर एनपी सिंह से ताज़ियत का इजहार किया है। इधर ऑल इंडिया रेडियो में हमारे साथी नजीर अहमद शेख तकरीबन 30 साल की सर्विस के बाद कल नौकरी से सुबकदोश हो रहे हैं। नजीर अहमद शेख के